Ladies and gentlemen, welcome back. A Beijing-based video sharing app called TikTok has knowingly given a platform to over 35,000 videos which have just one aim: spreading fake news and spreading communal hatred in India when all of us are fighting the pandemic. Watch how a Beijing-based video sharing platform, TikTok, has become the hub of hate during the biggest health crisis. This video shows a person licking currency and wiping it with his nose, giving out a message to deliberately spread the virus. कोरोना जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, अल्लाह का अज़ाब है आप लोगों के लिए. This group of 3 people are calling coronavirus spread revenge for non-existent NRC. वेलकम टू इंडिया कोरोना वायरस. हमसे नागरिकता का सबूत मांगने वालों, मेरे रब की एनआरसी लागू हो गई है. अब वही फैसला करेगा कौन रहेगा और कौन जाएगा. Faisal Sheikh is a superstar on TikTok with close to 28 million followers. Watch how he is violating the lockdown. Once again, he repeats the violation and almost mocks India's fight against the pandemic. मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ. The duo in this video are trying to insinuate the coronavirus is some form of revenge. वेलकम टू इंडिया कोरोना वायरस. हमसे नागरिकता का सबूत मांगने वालों, मेरे रब की एनआरसी लागू हो गई है. अब वही फैसला करेगा कौन रहेगा और कौन जाएगा. While TikTok has given a free run to hate content in India, should India too not ban this platform, which has become a breeding ground for communal activities? This is an attempt at creating panic and communal hatred in this country. TikTok people have to be told, do you understand what the situation is in India? This is not a minor indiscretion right now. It can cause riots in my country and I can't allow it. First of all, if there's a lockdown on everything, let me tell you viewers, ban or lockdown. Lockdown TikTok. Lockdown TikTok, because what's happening is very serious. It's a dangerous situation. The kind of videos going around are dangerous. TikTok's trying to be over smart. How should we respond? Don't be over smart, TikTok. Don't be over smart. The people of India who are following you will give up on you completely when they realize you're working against national interest. Do you understand, you Chinese company? And if you think I'm exaggerating the situation, I am not, because you have no idea how deep this penetrates. There are videos of 3 men in a TikTok video, I'll show the video on the screen, where they are saying, India coronavirus, हमसे एनआरसी का सबूत मांगने वालों, मेरे रब की एनआरसी शुरू हो चुकी है. I saw that. No, one second. What is that? At a time like this, what impact does that have on people? Very offensive. No, very offensive means what? This now becomes a matter of personal and national pride. My dear fellow countrymen, we have a lot of differences. We battle each other. We fight. We attack. We argue. We debate. That's what this show is about. But at the end of it, all of us, with all our myriad differences, add to the diversity of our nation. We are a nation. We are not just a market. We are a nation. We are not a market, and you cannot mint our market if you are infringing on our nation. Our national interests come first. The fact that you have access to the Indian market cannot come at the cost of overriding our national interest. And on this matter, all state governments in India will all come together right now. You cannot divide India anymore. India has been united. You cannot mint our market while infringing on our nation. Viewers, tell me whether you agree with simple points of reasoning on which I will debate today. It's time now for the moment of truth. Video sharing app called TikTok has knowingly given a platform to over 35,000 videos which have just one aim: spreading fake news and spreading communal hatred in India when all of us are fighting the pandemic.
which have just one aim: spreading fake news and spreading communal hatred in India when all of us are fighting the pandemic. Spreading fake news and spreading communal hatred in India. अब बताऊंगा मैं सच्चाई, बताऊं सच्चाई, बताऊं सच्चाई, कान पक जाएंगे, सुन नहीं पाओगे तो सुनो। जब सियासत में आए तो राजनीति के नियम बदल दिए, जब सत्ता में आए तो कूटनीति अर्थनीति के नियम बदल दिए, उनके लिए हमने इंटरव्यू के नियम बदल दिए। इसीलिए अंदाज भी नया है। आज से हम कर रहे हैं हल्ला बोल वीकेंड शो गेस्ट एंकर एडिशन की शुरुआत। दरअसल हमने सोचा कि राजनीतिक दलों के जो चेहरे बहस में अपनी बात रखते हैं, क्यों ना उन्हें एक दिन का एंकर बना दिया जाए। तो आज से हर पार्टी का एक प्रवक्ता एक शो के लिए बनेगा एंकर। पेशे से सर्जन डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। पार्टी की केंद्रीय समिति में ओडिशा राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रभावी वक्ता और हर मुद्दे पर न्यूज चैनल्स पर बीजेपी का पक्ष रखने वाले डॉक्टर संबित पात्रा आज प्रवक्ता नहीं, हल्ला बोल के वीकेंड गेस्ट एंकर स्पेशल के एंकर होंगे। नमस्कार अंजना जी। नमस्कार। आज आप गेस्ट एंकर हैं, लेकिन शुरुआत पत्रकारिता धर्म को निभाने की शपथ के साथ। मैं शपथ देख पा रहा हूं, मैं जरूर पहले शपथ ही लेता हूं। हाँ। धन्यवाद अंजना जी। आप सभी को नमस्कार। आज तक ने एक नए कार्यक्रम को आरंभ किया है, गेस्ट एंकर का, और मुझे उन्होंने आमंत्रित किया है और एक शपथ लेने के लिए कहा है। शपथ मेरे सामने है। मैं शपथ लेता हूं कि एंकर के तौर पर मैं पत्रकारिता धर्म का पालन करूंगा, किसी पार्टी का पक्ष नहीं लूंगा, हर गेस्ट को बराबरी से बोलने का मौका दूंगा, एंकर के तौर पर किसी की भी तरफदारी नहीं करूंगा। रुक जाइए, ब्रेक के बाद मैं तुरंत लौट के आता हूं। आप देखते रहिए हल्ला बोल, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी हल्ला बोलते हुए देश को जीतते जाए। ऐसे में हम आपको मिलवाते हैं राजनीति के ऐसी तमाम शख्सियतों से जिससे आपका और हमारा लेना देना है। हम आपकी बात करते हैं, हम आपकी बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं, हम देशभक्ति की बात करते हैं, हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हम ईमानदारी की बात करते हैं, हम आपके और अपने सरोकारों की बात करते हैं, हम महंगाई की भी बात करते हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, उनकी अदाकारी का सम्मान करता हूं, उनकी हाजिर जवाबी का सम्मान करता हूं, उनकी बोल्डनेस का सम्मान करता हूं, और इसीलिए मैं बुलाता हूं बीजेपी की बेटी राखी सावंत को। बेनजीर भुट्टो की तरह लग रही हैं आप। माय गॉड, बेनजीर भुट्टो। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। बहुत पाकिस्तानी नेता थी हमारी। बहुत दुख हुआ मुझे जब उनके साथ जो हादसा हुआ। नहीं, बेनजीर भुट्टो तो नहीं, लेकिन मैं अच्छी लग रही हूँ। बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। अच्छी लग रही है ना? मैं नहीं बोल रहा आप मुझे बेनजीर भुट्टो से ज्यादा भाजपा की बेटी कहे तो ज्यादा मेरी शान बनेगी। देश का बहुत बुरा हाल है। देश की जनता त्राही त्राही हो गई है, परेशान है। देश की जनता को एक देवी की जरूरत है, और वो देवी राखी सावंत है। बिल्कुल। नमस्ते भारत में एक ऐसी खबर जो आपको भी हैरान कर देगी। पति पत्नी और वो के चक्कर में मुंबई में एक बड़ा जाम लग गया। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कहानी मुंबई के परेड रोड इलाके की है, जहां सड़क पर ही पति पत्नी का झगड़ा ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया में वायरल हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पत्नी ने पति को दूसरी महिला के साथ कार में देख लिया था। अगर आप चाइनीज टिकटॉक के बंद होने से मायूस हैं, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आ गया है देसी टिकटॉक। चीनी टिकटॉक की जगह आ गया है भारतीय टिकटॉक। देखिए, प्रतिमा और कुमकुम दोनों कितनी खुश हैं। नया टिकटॉक आ गया बाजार में। इसे बनाने वाले इंजीनियर का दावा है कि ये सुरक्षित होने के साथ ही इसमें फीचर्स भी ज्यादा हैं। कल उनकी टेस्ट की गई थी क्योंकि कुछ सिम्टम आए थे और सिम्टम ज्यादा सीरियस नहीं है या एग्रीवेट हुए नहीं है। कहना है कि उम्र ज्यादा है, इसलिए एहतियातन सभी तैयारी अस्पताल ने की हुई है, लेकिन फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट को वो रेस्पॉन्ड करेंगे, ठीक से खाना खा रहे हैं, थोड़ी तबीयत खराब है, ज्यादा नहीं। महायोद्धा, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इस वक्त कोरोना से दो दो हाथ कर रहे हैं, और अब और पूरे देश में
सदी के महानायक बिग बी के लिए, अमिताभ बच्चन के लिए दुआओं का दौर शुरू हो चुका है। मंदिरों में सावन के महीने में भगवान शिव का पूजन अर्चन तो होता है, लेकिन इस समय अमिताभ बच्चन के लिए बनाए हुए मंदिर में रुद्राभिषेक हो रहा है। और वो कौन सी बीमारी है जो अमिताभ बच्चन के महायोद्धा वाले तेवर के ताप से पिघलकर पानी नहीं हो जाएगी? जिसके इरादे के बाजुओं में शहंशाह वाला दमखम हो, उसके सामने कोई कोरोना टिकेगा कैसे? वो लड़ना चाहे भी तो लड़ेगा कैसे? इंसान की फौलादी चेतना जब अपने लिए कोई पर्यायवाची शब्द ढूंढती है तो उसको अमिताभ बच्चन याद आते हैं। माननीय अमिताभ बच्चन जी, उनका परिवार और उनका विशेषकर पुत्र जो इस कोरोना रूपी जंजीर में फंस गए हैं, वह जंजीर बाबा विश्वनाथ की कृपा से छटेगी, दुख का बादल हटेगा और फिर जय जय होगी। बोलिए हर हर महादेव। डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं आप क्या कीजिएगा? आप लोग कोई इंतजाम? अभी मुख्यमंत्री गए ना यहाँ से, तब ये हालत है। मुख्यमंत्री अभी यहाँ से गए हैं, तब ये हालत है। पेशेंट लाके वेट कर रहा है। अगर मैं माइक नहीं ऑन करती साहब, आप मुड़ के नहीं देखते 1 घंटे तक। आप चुपचाप उधर देख रहे हैं ना, आपकी नर्सेस उसकी सुध ले रही है, कोई सुध नहीं ले रहा है। नहीं, केस अभी जस्ट आया है, मैं अभी राउंड ले रहा हूं। 5 मिनट से तो मैं देख रही थी बच्चे को पड़े हुए। राउंड ले रहा हूं, मैं राउंड नहीं ले रहा हूं, मैं क्या बैठा हूं? नहीं राउंड, लेकिन अगर कोई नया पेशेंट आया है तो उसको आप इंस्ट्रक्ट तो कीजिएगा कहाँ भेजना है, क्या करना है। नया पेशेंट है तो सिस्टर अटेंड कर रही थी ना, आप खड़ी है, आपने देखा, बहुत अच्छी बात है, आपने देखा, आपने बताया। अच्छी बात करने के लिए हम नहीं आए सर, हम तो ये देखने आए कि बच्चे की जान की कीमत इस देश में बची है या नहीं बची है, कि फौरन जो हम लोगों में एक संवेदनशीलता दिखनी चाहिए वो क्यों नहीं दिखती। आपको क्यों लगता है कि आप किसी भी संवेदनशीलता नहीं है किसी के? तो आपसे से पूछ रहे हैं, आप बताइए ना। तो हम बताने की बात नहीं है तो आपको बताना था ना, क्योंकि आप खड़े थे यहाँ पर मेरे बोलने के बाद आप इधर आए ना। आपकी नर्स देख रही है, कह रही है दूसरे जगह ले जाओ। पेशेंट देखना दोनों में डिफरेंस है। मैं खड़ा भाई साहब, आप कैमरा घुमा रहे थे, मैं देख रहा इधर वही है ना, वो तो हम देख रहे थे कि कैमरे के सामने आप इलाज करते हुए दिखना चाह रहे थे, और अच्छी बात भी, आप इलाज कर रहे हैं, लेकिन मेरा आराम से बच्चे को कोई क्यों नहीं देख रहा था? क्यों नहीं देख रहा था? यही आपकी संवेदनशीलता है कि आपको लगता है यहीं पर 5 मिनट 10 मिनट वेट करना तो इनकी वो है, नियति है, इनको वेट करना चाहिए। कि अगर ये हीट स्ट्रोक है तो इसको चमकी क्यों कहा जा रहा है? बच्चों को कन्वल्शंस क्यों हो रहा है हर 1 घंटे? अरे हीट स्ट्रोक का मैनिफेस्टेशन है कन्वल्सन। हीट स्ट्रोक 1 घंटे पे कन्वल्शंस आते हैं। Yes, it is a manifestation of convulsion with loss of consciousness. When I examine, go for the biochemical finding, there is a hypoglycemia, there is a hyponatremia, there is a hypernatremia, there is a hyperkalemia also, and neutrophilic leukocytosis with dehydration. तो गाना से शुरुआत होवे चाहिए कि नहीं? हाँ तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसा मैंने सोचा। मोदी ने अंतरिक्ष में भी भारतीयों को भेजने की बात लाल किले से की थी, तो उस पर भी मुहर लग गई है। 2022 तक अंतरिक्ष में 3 भारतीय भेजे जाएंगे, यानी मोदी का सपना पूरा होगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। दरअसल मैं ये महसूस करने की, आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम चांद पर गए तो कैसे जाएंगे। इस तरह के स्पेस शूट को पहन कर जाएंगे, और शायद इससे आगे की तकनीक भी विकसित हो जाए जब 2050 के आसपास वहां पर इंसानी कॉलोनी बन जाए। लिहाजा अब आप समझ गए होंगे कि हमने क्यों कहा कि चांद पर होगा मोदी। मैं भी एक इंसान हूँ, सुमित भी इंसान है, आप भी इंसान है, मेरी भी 2 आंखें हैं, आपकी भी 2 आंखें हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, वाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मजा आता है काम करने में, या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? ये बहुत ही पर्सनल नेचर का सवाल है। ये करीब, मेरा अनुमान है कि करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार की हवाएं होंगी। वहाँ पर निसर्ग नाम को तूफान का लैंडफॉल हुआ है। कि जासूसी के लिए संदिग्ध रूप से पाकिस्तान में ट्रेंड कबूतर है ये, जिसके बारे में जानकारी मिल रही है, जिसे इंटरनेशनल बॉर्डर से पकड़ा गया। इसके बाद इसको पिंजरे में कैद किया जाता है। ये दिल थाम कर बैठिएगा, बहुत गर्मा गर्म बहस होने वाली है। अभी आप मेरे साथ में, रात का टाइम है, अभी मेरे साथ में आप सड़क पे चलिए,
वहाँ देखिए कितनी महिलाएं कार रोक करके मेरा पैर छूती हैं। ये उसमें ब्लैकमेल किया गया था, मुझे ये कहा गया था। ब्लैकमेल किया था ये मुझे करण जौहर ने मुझे ब्लैकमेल किया था। क्या मतलब आपसे? आप पूछ लीजिए ना करण जौहर अभी जी मीडिया पर सवाल उठाते हैं, ऑडियो बंद करिए इनका। आप जानते हैं ZNCL क्या है? ZNCL 100 से ज्यादा देशों में देखा जाता है। ZNCL 1 अरब से ज्यादा लोग देखते हैं। ZNCL के 100 से ज्यादा चैनल हैं। कांग्रेस पार्टी 10 कांग्रेस पार्टी समा जाएंगी ZNCL में, इतना बड़ा है ZNCL। अरे माय डियर फ्रेंड, वो तो इसलिए भुगत रहा है कि तुम जैसे पत्रकार जो है 500 चैनल हमने खोल के रख दिए और तुम जैसे पत्रकार बन गए, इसलिए मुल्क आप ईवीएम को ब्लेम कर आज तक हमें ऐसा कोई मीडिया कर्मी नहीं मिला। कौन आज तक कोई होगी, सीधी बात करेंगे आपसे। भारत पाकिस्तान घमासान में आपका स्वागत है। क्या आतंकियों के बाद भारत में टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान? बोलिए सर, आप तो मुस्लिम पार्टी है, ये वादे थे। बोलिए सर, मौलाना साहब बोलिए, आप तो ऐसे ही मुस्लिम पार्टी है। अरे 80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है। जब आग लगेगी तो कोई घर न बचेगा। चिरकुट कोई चुप बैठ। आप से इसके अलावा और किसी भाषा में बात नहीं की जाती। भाषा की मर्यादा क्या हिंदू त्योहारों के साथ, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, क्या हिंदू त्योहारों के साथ कोई साजिश हो रही है? आज मैं सीधे सीधे पूछ रही हूँ कि चीन का सरेंडर क्या पाकिस्तान का है अगला नंबर? किसी और फतेह साहब के बारे में मैं बताना चाहूंगा अंजना जी आपके चैनल से कि इनको पाकिस्तान के ISIS ने स्पेशल मिशन पर भेजा है हिंदुस्तान में। और अब इन विरोध प्रदर्शनों के जरिए कुछ लोग इस्लामिक राष्ट्र का सपना देखने लगे हैं, कुछ लोग गजवाए हिंद का सपना देखने लगे हैं। क्या हिंदुस्तान में हर कोई जन्म से मुसलमान है? और क्या हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का देश है? कभी मुसलमानों की पार्टी, कभी हिंदू पाकिस्तान, कभी हिंदू तालिबान, और अब टोपी और हरा रंग कि मंदिर वही बनाएंगे और तुमको जरूर बुलाएंगे। मेरे साथ मुल्लाह का इस्लाम चलेगा भारत में या अल्लाह का इस्लाम, इसी पर बहस हो रही है। तो आप बड़ी बहस देखने जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो आज मंदिर में तोड़फोड़ से लेकर मदरसे के इस्तेमाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या मोदी बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? और आप जानते हैं आज बहस किस बात पर होनी है, मुसलमान हिस्सेदार या किराएदार? इन सब के बीच अब मलबे को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए हैं। मुस्लिम पक्ष ये मांग कर रहा है कि उसे मलबा उठाने की इजाजत मिलनी चाहिए। इसके पीछे मुस्लिम पक्ष हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे आप तो कायर आदे तेरी हालत की ऐसी की तैसी, गरीब बाजवे की ऐसी की तैसी। और keep quiet, you top, keep quiet and listen to the debate and let it continue in a decent organized manner. Don't be a disruptionist. मेजर साहब थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा कि इस देश के अंदर कुछ लोग हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, जिसका मैं बड़ा और कड़ा विरोध करता हूं आज। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। तुम हिंदू मुस्लिम चाहते हो, आप तुम देश में आगे पिछड़ चाहते हो, तुम देश में आगे रहना चाहते हो। आप अपने भाषा पे संयम रखिए, इतनी अभद्रता टीवी पे ठीक नहीं लगती। जाहिर सी बात है, अत्याचार देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। मेरा क्वेश्चन जो है कांग्रेस पार्टी से है कि अभी राहुल गांधी जी 15 मिनट मांग रहे हैं बोलने की। हम सभी ने देखा कि वो क्या बोलते हैं और कैसा बोलते हैं। उन्होंने स्पीकर मैडम को स्पीकर सर बोल देते हैं, आलू की फैक्ट्री चलाते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट में जाके सो जाते हैं, और अब वो समय मांग रहे हैं 15 मिनट बोलने का। कभी वो लंदन घूमने चले जाते हैं, कभी कभी सच सबके सामने है सर। मोदी जी चाहे कुछ ना करते हो, लेकिन उनसे अच्छा बोलते तो हैं कम से कम। बोलते हैं कि
मोदी ने आज तक इंडिया में कुछ नहीं करा है और वो बहुत ज़्यादा सवाल उठाते हैं उन पर। उन्होंने कितने सारे अपना खूब पैसा लगाया है और वो जब भी बाहर जाते हैं इंडिया के तो वो हमेशा इंडिया की तारीफ़ करते हैं। पर जब मोस्टली मैं न्यूज़ देखती हूँ तो मैं जब देखती हूँ तो जब राहुल जी बाहर जाते हैं वो अक्सर इंडिया को बहुत ज़्यादा बुरा बोलते हैं कि इंडिया ऐसा इंडिया ऐसा। तो जो काम मोदी जी ने करा है वो आज तक ना ही प्रियंका गांधी ने करा है। वो आई हैं कुछ दिनों पहले, उनके हस्बैंड गए थे कोर्ट में, उन्होंने आज तक अपना कोई पैसा नहीं लगाया है। क्या कर रही हैं, कितने अखबार पढ़ रही हैं रोज कि आज तक देख रही हैं? बस आज तक देख रही हैं? आज तक और जी न्यूज़। बहुत अच्छी बात है, आज तक देख के ही आपको इतना ज्ञान आ गया है। चलिए शाबाश, ये बच्चा बड़ा होके मंदिर बनाएगा। मैंने 23 साल से पत्रकारिता की है और मैं आज एक बात पूरे विश्वास से और कॉन्फिडेंस से कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में ये मीडिया नहीं रही। Should India do not ban this platform which has become a breeding ground for communal activities? जो दिन रात जपे बस तेरा नाम वो मेरी नजर में झूठिया।